أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरत रहमान की तिलावत मुकम्मल करने की सआदत नसीब हुई।
اب اس کا ترجمہ اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آواز سب کو صاف سنائی دے رہی ہے؟ آواز کے بارے میں ذرا کنفرم کر دیں، آواز صاف آ رہی ہے سب کو؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، فَإِذَا پھر جب، انشقت پٹ جائے گا، السماء آسمان، فَكَانَتْ تو وہ ہو جائے گا، وردتاً گلابی، کالدہان سرخ چمڑی کی طرح۔ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا گلابی سرخ چمڑی کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاء تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ پھر اس دن، لا یسأل نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنبہ اس کے گناہ کے بارے میں، پھر اس دن اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، انسن نہ کسی انسان سے، ولا جان اور نہ کسی جن سے۔ تو اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے، نہ تو کسی انسان سے پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یعرف پہچان لیے جائے گے، المجرمون سب مجرم، بسیماہم اپنی چہرے کی علامت کے ساتھ، فیؤخذوا پھر پکڑا جائے گا انہیں، بالنواسی پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور قدموں سے۔ پہچانے جائیں گے مجرم اپنی نشانیوں سے، تو پکڑا جائے گا ان کو پیشانیوں اور پاؤں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ہذہ کہا جائے گا یہی ہے، جہنم جہنم، التی جس کو، یکذب وہ جھٹلایا کرتے تھے، بہا اس کو، المجرمون مجرم۔ یہاں پہ وہ ترجمہ نہ کرے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ المجرمون فاعل ہے تو وہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یکذب جھٹلایا کرتے تھے جس کو، المجرمون مجرم لوگ، یہی وہ جہنم ہے جس کو جھٹلاتے تھے مجرم لوگ، اس کو کیا کرتے تھے، مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون وہ سب چکر لگائیں گے، بینہا اس جہنم کے درمیان، و بین حمیم اور سخت پانی کے، سخت گرم پانی کے درمیان، جہنم اور سخت گرم پانی کے درمیان وہ کیا کریں گے، چکر لگائیں گے، پھر چکر لگائیں گے اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، وبین حمیم آن۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ولیمن خاف اور اس کے لیے جو ڈر گیا، مقام کڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے، جنتان دو باغ ہے، اصل میں ولیمن جنتانی، اور اس کے لیے دو باغ ہے، خاف مقام ربہ جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کڑا ہونے سے، اس شخص کے لیے جو ڈرا کڑا ہونے سے اپنے پروردگار کے سامنے دو باغ ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان دونوں جو ہے، ذواتا وہ دونوں باغ جو ہے، افنان ان شاخوں والے ہوں گے، وہ باغ گھنی شاخوں والے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فیہما ان دونوں میں، عینان دو چشمے ہیں، تجریان دونوں بہہ رہے ہوں گے۔ فیہما ان دونوں میں، عینان دو چشمے ہیں، تجریان وہ دونوں بہہ رہے ہوں گے، ان دو باغوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فیہما ان دونوں میں،
من कुल्ल फाकिहतिन, हर फल से ज़ौजान, दो दो किस्में होंगी। उन दो बागों में किस्म किस्म के फल होंगे। अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम दोनों जुटलाओगे? कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम दोनों जुटलाओगे? मुत्तकीना, सब तकिया लगाने वाले होंगे, अला फुरुशिन, ऐसे बिछौनों पर, बताइनुहा, कि उनके अस्तर जो है मिन इस्तबरक, मोटी रेशम के बने होंगे। वजना अल जन्नतैन दान, और फल दोनों बागों के दानिन करीब ही होंगे। उन बागों में तकिए लगाकर बैठने वाले होंगे, ऐसे बिछौनों पर जिनके असर मोटे रेशम के होंगे, और उन बागों के फल करीब होंगे। उन बागों के फल क्या होंगे? करीब होंगे। अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम दोनों जुटलाओगे? फीहिन्ना, उनमें, कासिरातु तर्फ़ी, नीची निगाह वाली हूरें हैं, लम यतमिथुन्ना, नहीं छुआ उन्हें इंसुन, किसी इंसान ने, कबलहुम, उनसे पहले, वला जान, और न किसी जिन ने। वला जान, और न किसी जिन ने। उन बागों में औरतें होंगी नीची निगाह वाली, कि नहीं छुआ उनको किसी इंसान ने इससे पहले, और न किसी जिन ने। अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम दोनों जुटलाओगे? कअन्नहुन्ना, गोया कि वो औरतें, अल याकूत, याकूत है, वल मरजान, और मोती है। वो औरतें गोया कि याकूत और मरजान है। अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम दोनों जुटलाओगे? हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नहीं बदला एहसान का मगर एहसान ही है। नहीं है बदला एहसान का मगर एहसान ही है। अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वमिन दूनिहिमा, और उन दोनों बागात के अलावा, जन्नतान, दो बाग और भी होंगे। दो बागों के अलावा दो बागात जो हैं और भी होंगे। जी एक मिनट। वमिन दूनिहिमा जन्नतान, और उन दोनों बागात के अलावा दो बाग और भी होंगे। तब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम दोनों जुटलाओगे? मुदहाम्मतान, वो दोनों बाग बहुत गहरे सब्ज हैं। तब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फीहिमा आइनान नज़्ज़ाख़तान, फीहिमा, उन दोनों में, आइनानी, दो चश्मे हैं, नज़्ज़ाख़तान, दोनों खूब जोश मारने वाले हैं। दोनों खूब जोश मारने वाले हैं। अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान, उन दोनों में फल है और खजूर के दरख्त है, व रुम्मान, और अनार है। अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फीहिन्ना, उनमें, खैरातुन, खूबसूरत, हिसानुन, खूबसूरत औरतें हैं। उनमें खूबसूरत और खूबसूरत औरतें हैं। तब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हूरुन, वो हूरें हैं, मकसूरातुन, मस्तूर यानी ठहराई हुई है, फिल खियाम, खेमों में। वो गोरे रंग की है और वो ठहराई हुई है, मस्तूर है, खेमों में। तब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, लम यतमिथहुन्ना, नहीं छुआ उन्हें इंसन, किसी इंसान ने, कबलहुम, उनसे पहले, वला जान, और न किसी जिन ने। अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मुत्तकीना, सब तकिया लगाने वाले होंगे, अला रफ रफिन खुज़रिन, सब्ज कालीनों पर। रफ रफ का माना कालीन, खुज़र सब्ज, सब्ज कालीनों पर, वाबकरीन, और नादिर, हिसान, नफीस मसनदों पर। वो लोग तकिया लगा के बैठने वाले होंगे सब्ज रंग के मसनदों पर और निहायत नफीस कालीनों पर। अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
तबारक अस्मु रब्बिका, बहुत बरकत वाला है नाम रब्बिका, आपके रब का, दिल जलाली, जो बड़ी शान वाला है, वल इकराम, और इज्जत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरत रहमान का तर्जुमा जो है वो भी आपके सामने मुकम्मल तौर पे बयान कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने जिक्र करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अगर किसी को अभी तक समझ नहीं आई तो अब तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह वो समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आप सबको मालूम है कि सूरत के इब्तिदा में अल्लाह ताला ने अपने उन खुसूसी इनामात का जिक्र किया जो उसने अपनी मखलूक और ख़ास तौर पर नस्ल इंसानी पर किए हैं। फिर जज़ाए अमल के बारे में फरमाया कि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ फ़ानी है और बाकी रहने वाली सिर्फ परवरदिगार की ज़ात है। उसके साथ इनामात के सिलसिले को दोहरा कर लोगों को ये बात बावर कराई गई कि वो मोहताज है और हर चीज़ अल्लाह ताला से ही अपनी हाजात तलब करती है। फिर वक़ूअ क़यामत और मुहासबे आमाल का जिक्र किया। मुजरिमीन के बारे में फरमाया कि उन पर आग के शोले और धुआं फेंका जाएगा मगर उन्हें किसी तरफ से मदद नहीं मिल सकेगी। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने ये जुमला भी दोहराया कि "ए जिन्नों और इंसानों, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे"। तो आज के सबक में भी वक़ूअ क़यामत और जज़ाए अमल ही का बयान है। फ़इज़ा शक़्क़ति समाउ, जिस वक़्त आसमान फट जाएगा, ये वक़ूअ क़यामत की अलामात में से एक अलामत है कि आसमान फट जाएगा। फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, तो वो हो जाएगा सुर्ख काल की तरह, वो हो जाएगा सुर्ख चमड़ी की तरह। वर्दा गुलाब को कहते हैं और दिहान दबागत शुदा काल को कहते हैं, यानी जिसको साफ किया गया हो, जो सुर्खी माइल होती है। मतलब ये है कि आसमान फट कर गुलाबी या सुर्ख रंग का हो जाएगा। इसी तरह दिहान जो है तेल की तलछट को भी कहते हैं, जो सुर्खी माइल होती है। इस वक्त तो आसमान नीलगू नजर आता है लेकिन क़यामत वाले दिन सुर्खी माइल हो जाएगा। और दूसरी जगह है कि आसमान फट कर दरीचे दरीचे हो जाएगा और उससे ऊपर की चीजें नजर आने लगेंगी। फिर वही जुमला दोहराया, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों जिन और इंसान अपने परवरदिगार की किस किस नेमत की तकजीब करोगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मुजरिमों की सजायाबी अहले ईमान के हक में नेमत है। इसीलिए सूरह इनाम में इरशाद फरमाया, सूरतुल अनआम में इरशाद फरमाया है, फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बस जालिमों की जड़ काट दी गई है। अब सब तारीफें तमाम जहानों के परवरदिगार के लिए ही सदावार है। वफादारों के हक में तो ये नेमत है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि हो सकता है कि सजा का हाल सुनकर मुजरिम लोग जराइम से ही बाज आ जाएं। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर आयत में अपनी नेमत जताई है। कोई तो फिल वाक़या नेमत है जिससे मखलूक मुस्तफ़िद हो रही है, और किसी बुरे अंजाम की खबर देना भी नेमत है कि लोग डर कर उस बुराई से बाज आ जाएं और सजा से बच जाएं। फिर आगे इरशाद होता है, फयौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान, उस क़यामत वाले दिन किसी इंसान या जिन से उसके गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे। युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम, मुजरिम लोग अपनी निशानियों से पहचान लिए जाएंगे। इस आदम बाज पुरस का ये मतलब नहीं कि उन्हें बगैर सजा के खुला छोड़ दिया जाएगा, बल्कि मतलब ये है कि उनसे पूछने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनके गुनाहों की आलूदगी उनके चेहरों से जाहिर होगी। जैसा कि सूरह आबस में फरमाया, ववुजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा, और कितने मुंह होंगे जिन पर उस दिन चढ़ रही होगी और स्याही चढ़ रही होगी। इसके अलावा अल्लाह ताला खुद भी हर शख्स के हालात को जानता है और हर शख्स का हर अमल लौह महफूज में भी महफूज है, फरिश्तों की किताबों में भी दर्ज है और हर इंसान के अमल नामे पे भी महफूज है।
शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत के मुताबिक इंसान की नेकी और बदी उसके रूह और नस्मे में महफूज है। तो फरमाया कि उस दिन मुजरिमों से पूछने की जरूरत नहीं होगी, अलबत्ता डांट डपट और सरजनश के लिए जरूर बदफरस होगी। सूरह हिजर में फरमाया, और रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन, तेरे परवरदिगार की कसम, हम उन सब से जरूर पूछगछ करेंगे, हम उन सब से जरूर पूछगछ करेंगे, और ये बाज़ सजा के लिए होगी। मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि क़यामत को कई मौके पेश आएंगे, बाज़ मौके पे पूछा जाएगा और बाज़ पे नहीं। तो इस एतबार से भी ये कह सकते हैं कि मुजरिमों से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जुर्म की नौइयत के एतबार से फ़युअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, वो पेशानी के बालों से पकड़े जाएंगे और पाँव से पकड़ के घसीटे जाएंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुठलाओगे। जिस तरह मुजरिम लोग अपनी निशानियों से पहचाने जाएंगे, इसी तरह अहले ईमान भी बाज निशानियों से पहचाने जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि मेरी उम्मत के लोग वुजू की आज़ा से पहचाने जाएंगे। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर असर के हजूम में आप अपनी उम्मत के लोगों को कैसे पहचानेंगे? तो फरमाया, अगर किसी शख्स के बहुत से घोड़े हों जिनमें पंच कलियान भी हों तो उनको कैसे पहचाना जाता है? साहबा ने अर्ज किया कि ऐसे घोड़े अपने चेहरे और चारों पांव की सफेदी से पहचाने जाते हैं। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों के चेहरे और हाथ और पांव वुजू करने की वजह से रोशन होंगे, तो मैं उन्हें आसानी के साथ पहचान लूंगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आता है कि अल्लाह की रजा की खातिर आजान देने वालों की गर्दनें क़यामत के दिन बुलंद होंगी और इस तरह मुअज्जिन लोग पहचाने जा सकेंगे। गर्दनें लंबी होने का ये मतलब नहीं कि वो ऊंट की तरह लंबी होंगी, बल्कि उन पर खास किस्म की नूरानियत जो है वो चाहिए होगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये मुअज्जिन है जो दुनिया में अल्लाह का कलिमा बुलंद करते रहे और लोगों को नमाज की तरफ दावत देते रहे। हदीस शरीफ में अल्लाह ताला के नबी ने बाज दूसरे लोगों की पहचान का भी तज़किरा फरमाया है। मसलन मुतकब्बिर और मगरूर लोग क़यामत वाले दिन चूंटियों के बराबर छोटे छोटे होंगे। दुनिया में तो बड़े बनते रहे, हसब नसब माल और दौलत पे गुरूर करते रहे, मगर उस दिन उनके जिस्म चींटियों जितने होंगे और वो पहचाने जाएंगे। हिर्स का मरीज जो है दुनिया में मुर्दार खाने वाले कुत्ते की तरह होगा, वो क़यामत वाले दिन खंजीर की शक्ल सूरत में होगा। इस तरह मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी फरमाया कि जिनाकारों की आज़ाए तनासुल से इस कदर बदबू आएगी कि कोई पास खड़ा नहीं हो सकेगा। शराबखोर के मुंह से भी ऐसी बदबू आएगी जैसा कि गंदा दहनी की बीमारी होती है, और ये बीमारी बाज को बगल में भी होती है, बाज को पाँव में और बाज को मुंह में। तो मतलब मुख्तलिफ किस्म के लोग अपनी अपनी निशानियों की वजह से पहचाने जाएंगे। तो मुजरिम लोगों को पेशानी के बालों और पांव से घसीट कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा और कहा जाएगा, हदी जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, कि ये है वो जहन्नुम जिसको मुजरिम लोग जुटलाते रहे। जब उन्हें दुनिया की जिंदगी में बुरे अमाल और जहन्नुम की आदाब से डराया जाता था तो वो तकजीब कर देते थे और कहते थे कि कोई क़यामत नहीं, न कोई हिसाब किताब है, और न उसके नतीजे में जन्नत और दोजख है। ये सब कहानियां हैं जो लोगों ने बना रखी है। तो ऐसे लोगों को जहन्नुम रसीद करके कहा जाएगा, इस जहन्नुम का तुम इनकार करते थे, अब इसका मजा चख लो। सूरह हाकम में जहन्नुम रसीदगी का हाल इस तरह बयान किया गया, खुज़ूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, इसे पकड़ लो, तोक पहना दो, फिर दोज़ख की आग में झोंक दो, फिर 70 गज लंबी जंजीरों में जकड़ दो। फिर उस वक्त हालत ये होगी, यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, फिर वो चक्कर लगाएंगे दोजख और खोलते हुए पानी के दरमियान। जब आग की शिद्दत से प्यास महसूस होगी तो पानी की तरफ दौड़ेंगे, मगर वो खोलता हुआ गर्म पानी होगा। सूरह मोहम्मद में है
کہ जब वो पानी का एक घूंट पिएंगे तो वो इस कदर गर्म होगा, कि उनकी आंतों को काट कर नीचे जो है वो फेंक देगा। फिर वो अपनी असली जगह पे आएंगे, फिर पानी पिएगा, और फिर वही हालत होगी। उनकी एक और हालत सूरह निसा में इस तरह बयान की गई है कि जहन्नुम में कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम दूसरी खाल पहना देंगे, फिर वो भी जल जाएगी तो और खाल चढ़ा दी जाएगी, और इस तरह उनको मुसलसल सजा मिलती रहेगी। सूरह वाक़िया में दोज़खियों के खाने पीने का भी जिक्र आता है। लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, के खाने के लिए तोहड़ का कड़वा दरख्त होगा जिससे वो पेट भरने की कोशिश करेंगे। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, और पीने के लिए खोलता हुआ पानी होगा। सूरह हाक़ा में फरमाया वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, उनके खाने के लिए ऐसी बदबूदार पीप होगी जिसका एक डोल बन के अगर दुनिया में फेंक दिया जाए तो दुनिया की कोई चीज इस्तेमाल के काबिल ना रहे। ऐसा ही एक नक्शा सूरह गाशिया में खींचा है। तुस्का मिन आइनिन आनिया लैस लहू तआमुन इल्ला मिन दरीअ ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, उनको खौलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा, और खाने के लिए खारदार जाड़ होगा जो कि जिस्म को न फरबा करेगा, मोटा करेगा, और न उससे भूख दूर होगी। और फिर आखिर में वही जो जुमला दोहराया गया, फबियाई आला रब्बिकुमा तुकज़िबान, ऐ जिन्नों और इंसानों, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। तो ये मज़कूरा सजाएं भी इस एतबार से नेमत है कि उनकी होलनाकी को सुनकर लोग बुराई से बाज आ जाएं और नेकी को इख्तियार कर ले। अगर ये बात किसी की समझ में आ जाए तो सजा का बयान फिल वाक़या उसके लिए नेमत साबित होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। फिर आगे फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो शख्स डर गया अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से, जिसको वुकूअ क़यामत और जज़ाए अमल पे यकीन आ गया, उसे इल्म हो गया कि उसने एक दिन अल्लाह ताला की अदालत में खड़े होके अपने अमाल का हिसाब देना है, वो लाजिमन ईमान और नेकी को इख्तियार करेगा, बदअकीदगी और बद आमाली से बच जाएगा। सूरतुन नाज़िआत में है वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से डरा और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बिलाशुबा उसका ठिकाना जन्नत होगा। अलबत्ता इस मकाम पर फरमाया कि जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए जन्नतान, दो जन्नतें या दो बाग होंगे। अगली आयत में अल्लाह ताला ने इन बागात के औसाफ बयान फरमाए हैं। मुफस्सिरीन दो बागों की मुख्तलिफ तौजीहात बयान फरमाते हैं। अगली सूरतुल वाक़िया में नेकी करने वालों के दो ग्रोहों का जिक्र आ रहा है। एक ग्रोह साबिकीन का है, ये वो लोग हैं जो नेकी में सबकत करने वाले हैं, और दूसरा ग्रोह असहाब यमीन का है जिनको आमल नामा उनके दाएं हाथ में मिलेगा। ये लोग अगरचे साबिकीन से कम दर्जे में होंगे मगर ये भी कामयाब होंगे। तो यहाँ पर जिन दो जन्नतियों का जिक्र फरमाया है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उनमें से एक बाग साबिकीन के लिए है और दूसरा असहाब यमीन के लिए है। बाद मुफस्सिरीन दो बागात या दो जन्नतों की तकसीम इस तरह करते हैं कि एक बाग जिन्नों के लिए होगा और दूसरा इंसानों के लिए, एक क्योंकि इस सूरत में अल्लाह ताला ने इन दोनों अनवा से बार बार खिताब किया है। चुनांचे इस सूरत मुबारक से मुफस्सिरीन ये भी अखज़ करते हैं कि जिस तरह इंसान जन्नत में जाएंगे इसी तरह जिन्नात भी जन्नत में जाएंगे, उनको भी ऐसी ही सजा मिलेगी जिसकी तशरीह जो है आगे आ रही है। तो ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जिन्नात की तख्लीक इंसानों की तख्लीक से बहुत पहले हुई, उनकी आबादी भी इंसानों से कहीं ज़्यादा है। इंसानों की तरह उनकी भी पार्टियाँ और गिरोह है, उनमें मोमिन और काफिर दोनों तरह है, और फिर वो भी मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरके रखते हैं। तो जिन्नों में से जो कोई ईमान लाएगा, नेकी और तकवा का रास्ता इख्तियार करेगा, वो भी जन्नत में जाएगा और वहाँ के इनाम और इकराम का हकदार होगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मज़कूरा दो जन्नत एक ही शख्स के लिए है। एक जन्नत उसे उसकी नेकियों की वजह से मिलेगा
दूसरा गुनाहों को छोड़ने की वजह से। इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाहि अलैह और बाज़ दीगर मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि इंसान को एक जन्नत उसकी जिस्मानी राहतों के लिए मिलेगा, जबकि दूसरी जन्नत में उसके लिए रूहानी राहतों का सामान होगा। जिस्मानी राहत में खाना पीना, बीवियां, बागात, फल, नहरें वगैरह ये सब है, जबकि रूहानी राहत में इंसानों को रूहानी सुकून, इत्मीनान हासिल होगा। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दो जन्नतों में एक जन्नत इंसान को उसके हुस्न अकीदा की बिना पे मिलेगा और दूसरा जन्नत आमाल हसना की वजह से हासिल होगा। हम ये दोनों जन्नत एक ही शख्स के लिए है। बाज ये भी फरमाते हैं कि हर मोमिन को एक जन्नत उसके नेक अमाल के बदले में मिलेगा और दूसरा जन्नत अल्लाह ताला के फजल और इनाम की वजह से हासिल होगा, क्योंकि खुद अल्लाह ताला का वादा है लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। जिन लोगों ने दुनिया में नेकी के काम अंजाम दिए उनका बदला नेकी है और कुछ ज्यादा भी है। ये ज्यादती अल्लाह ताला के फजल और इनाम की वजह से होगी और इसमें दीदार इलाही का जिक्र भी आता है। हदीस शरीफ में ये भी आता है कि मज़कूरा दो जन्नतों में से एक का साजो सामान यानी फर्नीचर, बर्तन, सामान आराइश वगैरह चांदी का होगा और दूसरे का सोने का होगा। गोया दो जन्नतों में इस कदर तफावत होगा। जाहिर है चांदी के साजो सामान की अपनी कैफियत होगी जो सफ़ेद होगी और सोने की दूसरी शान होगी। ये भी अल्लाह ताला का फजल व इनाम ही होगा और इस किस्म की मिसालें दुनिया में भी मिल जाती है। तो अल्लाह ताला के इनामात और अल्लाह ताला के इकराम ये बहुत आला और अरफा होंगे, जिनका तस्वुर जो है आज हम नहीं कर सकते। तो बहरहाल फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए दो बाग होंगे। और फिर याद दिलाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नों और इंसानों के ग्रोह, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे। इन बागों की कुछ कैफियत फिर आगे बयान की जा रही है। ज़वाता अफनान, वो दोनों बाग घनी शाखों वाले होंगे। जाहिर है कि बाग का हुस्न जो है दरख्तों से होता है और दरख्तों का हुस्न उनकी शाखों, पत्तों, फूलों और फलों से होता है। और फिर यह है कि घने बागात ज्यादा खुशकुन होते हैं। अगर दरख्त मौजूद भी हो लेकिन पतझड़ का मौसम हो तो बाग भला मालूम नहीं होता, मगर अल्लाह की जन्नत में सदा बहार दरख्त, फल, फूल और पौधे होंगे जिनकी दिलकशी में कभी फर्क नहीं आएगा। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस कदर इनाम और फजल फरमाया है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपने परवरदिगार की किस किस नेमत का इनकार करोगे, अपने परवरदिगार की किस किस नेमत का इनकार करोगे। इन बागात की एक और खुसूसियत जो है ये बयान फरमाई फीहिमा ऐनानी तजरियान, उनमें दो चश्मे बहते होंगे। वो ऐसा नफीस पानी होगा जो न कभी बासी होगा और ना उसमें बदबू पैदा होगी। उन चश्मों का पानी हमेशा हमेशा मीठा, खुशगवार और तरोताजा रहेगा। बाद मुफस्सिरीन फरमाती हैं कि ये दो चश्मे सलसबील और कौसर है जिनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों गुरोह अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे। के अलावा फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान, इन बागात में हर किस्म के जोड़े जोड़े फल होंगे। वहां पर अनवा व अक़साम के फल बाफरात मौजूद होंगे। जन्नती जिस किस्म का फल चाहेगा उसे मुहैया किया जाएगा। जन्नत में मुख्तलिफ किस्म के फलों का जिक्र कुरान मजीद की मुतादद सूरतों में बयान हुआ है। अब यही अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे। अगली आयत में जन्नतियों के ऐश व आराम की हालत बयान की गई है। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक, वो ऐसे बिछौनों पे तकिया लगा के बैठने वाले होंगे जिनका अस्तर मोटे रेशम का बना हुआ होगा। मतलब ये है कि उनके बिस्तर निहायत आला और नफीस किस्म के होंगे। ये रेशम वगैरह की मिसाल तो इस दुनिया में पाई जाने वाली अशिया की निस्बत से है, वरना जन्नत की हर चीज बेमिसाल होगी और आज हम उसकी उम्दगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। फिर आगे फरमाया वजन अल जन्नतैनी दाग, उन बागों के फल बिल्कुल करीब ही होंगे।
जन्नती बिस्तर पे आराम कर रहा है, उसका जी चाहता है कि कोई फल खाए तो उसे उठ के कहीं जाना नहीं पड़ेगा कि जाके फल तोड़ लाए या किसी खादिम को हुक्म दे कि उसके लिए फल जो है वो मुहैया करे। बल्कि उन बागात के फल इतने करीब होंगे कि हर जन्नती आदमी को हाथ भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा, बल्कि फल खुद ब खुद उसके मुंह के करीब आ जाएगा। अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़िबान। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों की तकजीब करोगे? खुराक, पानी, लिबास, मकान, सेहत, तालीम, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है। इनकी वजाहत कुरान और सुन्नत में कर दी गई है कि ये चीज़ें हर शख्स को मिलनी चाहिए। इन चीज़ों के अलावा इंसान को अपनी जोड़ी की भी ज़रूरत होती है, मर्द को औरत की ज़रूरत होती है, औरत को मर्द की। इन दोनों ज़रूरियात की तकमील और नस्ल इंसानी की बका के लिए अल्लाह ताला ने निकाह का सिलसिला कायम किया है। ये सिलसिला तो दुनिया तक महदूद है। आगे जन्नत में पहुंच के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर शख्स को कम अज कम दो बीवियां मुयस्सर होंगी। वमा फिल जन्नति आज़म, यानी कोई जन्नती मुजर्रद नहीं होगा, सारे साहिब अहल होंगे। सूरह तूर में जहां अहले जन्नत के दीगर इनामात का जिक्र है, वहां फरमाया कि वज़व्वजनाहुम बिहुरिन ईन, कि हम उनका मोटी आंखों वाली खूबसूरत औरतों से निकाह कर देंगे। उसी नेमत को अल्लाह ताला ने इस मकाम पर भी बयान किया है, फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ, इन जन्नतों में नीची निगाह रखने वाली पाकीज़ा औरतें होंगी। सूरह बकरा में है, वलहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरा, जन्नत में अहले जन्नत के लिए पाक बीवियां होंगी। ये हूरें जो है जन्नत की मखलूक में से होंगी, यानी उनकी तख्लीक ही जन्नत में हुई होगी। अल्लाह ताला ने उनकी सिफत ये भी बयान की कि वो अपने खावंद और महरमों के अलावा किसी पर निगाह नहीं उठा सकेंगी। और दूसरी सिफत ये कि लम यतमिथुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, अहले जन्नत से पहले ना उन्हें किसी इंसान ने छुआ होगा और न किसी जिन ने। वो बड़ी ही बाहया और बाइस्मत औरतें होंगी, और यही दो चीजें औरत का जेवर है। इस्मत जो है ये बड़ी नाजुक चीज है, अगर इस्मत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सूरह कसस में अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी का तज़किरा किया कि जब वो मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आई तो तमशी अला इस्तिहया, हयादारी के साथ चलती हुई आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि जिसमें हया नहीं उसमें ईमान नहीं। हया सिर्फ औरतों के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ये मर्दों के लिए भी ऐसी ही जरूरी है जैसी औरतों के लिए। पहले नबियों की तालीम में भी था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, अगर तुझ में हया नहीं है तो जो जी चाहे करते रहो, कौन पूछने वाला है। तो हया जो है ये कमाल दर्जे की सिफत है। तो जन्नत की औरतें जो है बाहया और बाइस्मत होंगी, और जन्नतियों से पहले उन्हें किसी इंसान या जिन ने हाथ नहीं लगाया होगा। हम दुनिया में देखते हैं कि आज इन्हीं दो चीज़ों का फुकदान है। खासतौर पे मगरबी ममालिक में बेहयाई जो है वो फैशन के तौर पे हो रही है, और उसके असरात हमारे मुल्कों पर भी ज़ाहिर हो रहे हैं। शाह से फरमाते हैं कि जब इंसान फितरी हालत से बाहर निकल जाए तो वो इंसिलाखी या बेगैरत हो जाता है, उसमें जौहर कमाल बाकी नहीं रहता। इन चीज़ों का पता उस वक्त चलेगा जब जज़ाए अमल का वक्त आएगा। दुनिया में हुकूमती सतह पे बेहयाई जो है वो फैलाई जा रही है। इसकी वजह से अखलाक जो है ख़राब हो रहे हैं, दीन बर्बाद हो रहा है, नस्लें ख़राब हो रही है, अमाल जो है बिल्कुल ज़ाया हो रहे हैं, और इस तरह पूरी इंसानी सोसाइटी तनज़्ज़ुल की तरफ जा रही है। तो देखो जन्नती औरतों की अल्लाह ताला ने तारीफ बयान की है कि उनकी निगाहें नीचे होंगी, और आजकल नाम नहाद तरक्की पसंद मुआशरे की तरह मर्द और जन का खुलेआम मेलजोल, मुसाफहे और हंसी मजाक, इसमें ऐसा कैसे होगा? तो जन्नती औरतों की अल्लाह ताला ने तारीफ बयान की है, उनकी निगाहें जो है वो नीचे होंगी। और आज जो है
हमारे معاشرے में रेडियो आम है, टेलीविज़न आम है, इंटरनेट आम है, सोशल मीडिया आम है, बेहयाई और फहाशी जो आम फैलाई जा रही है। तो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होंगी, बल्कि हर जन्नती मर्द और जन्नत की हर औरत बाहया और बाइस्मत होगी। वो किसी दूसरी तरफ आँख उठा के भी नहीं देखेंगे। तो अल्लाह ताला ने जन्नत की औरतों की सिफ़ात बयान फरमाई है और साथ में वही जुमला दोहराया, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की किस-किस नेमत को झुटलाओगे? कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, वो औरतें गोया कि याक़ूत और मरजान है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुटलाओगे? याद रखो हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नहीं है बदला एहसान का मगर एहसान ही, यानी नेकी का बदला नेकी की सूरत में ही मिलेगा। अगर दुनिया में नेक नियति के साथ अच्छे अमाल अंजाम दिए हैं तो उनकी जजा भी अच्छी होगी। सजदा में अल्लाह ताला का फरमान है, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। कोई नफ्स नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने उनकी आंखों की कैसी ठंडक छुपा रखी है। ये उनके अमाल ही का बदला होगा जो वो दुनिया में अंजाम देते रहे। अल्लाह ताला ने उनकी खुशी और राहत के लिए बेशुमार नेमतें तैयार कर रखी है जिनका इल्म वही चलकर होगा। इस दुनिया में उनका इदराक नहीं किया जा सकता। अब यही हाल है रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपनी परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? वमिन दुनिहिमा जन्नतान, तो इससे पहले दो बागों का जिक्र हो चुका है जो अल्लाह ताला ने साबिकीन के लिए तैयार कर रखे हैं। अब मजीद दो बागों का तज़किरा है जो अल्लाह ताला ने अस्हाब यमीन के लिए मखसूस किए हैं। वमिन दुनिहिमा जन्नतान, इन दो बागों के अलावा दो मजीद बाग होंगे जो पहले मज़कूरा बागों से कम दर्जा के होंगे। अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुदहाम्मतान, फिर इन बागों की तारीफ में फरमाया मुदहाम्मतान, ये दोनों गहरे सब्ज रंग के होंगे। जब सब्ज रंग गहरा हो जाए तो कदर स्याही माइल हो जाता है। ये निहायत ही सरसब्ज और खुशनुमा बाग होंगे जिनमें हर चीज करीने के साथ तरक्की होगी जो इंसानी तवाए के अन मुताबिक होगी। जन्नती इन बागात को पाकर बड़े मसरूर होंगे। अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे? आगे इन बागात के लवाजिमात से के बारे में फरमाया, फीहिमा ऐनान नज़्ज़ाख़तान, इन बागात में दो उबलते हुए चश्मे होंगे। वहां पानी की कोई कमी नहीं होगी, बल्कि पानी हर वक्त जारी और सारी होगा। अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत की तकजीब करोगे? इसके अलावा फरमाया, फीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान, उन बागों में फल खजूरें और अनार होंगे। जन्नत के फलों को दुनिया के फलों के साथ सिर्फ तशबीह दी गई है, वरना जन्नत की मेवाजात बेमिसाल है और हम उनका तस्वुर उस दुनिया में नहीं कर सकते। उनकी रंगत, खुशबू और जायका बेहतरीन किस्म का होगा। अगर खजूर और अनार भी फलों में शुमार होते हैं, मगर इनको फलों के जिक्र के बाद बतौर खास जिक्र किया गया है, तमाम उसकी वजह ये मालूम होती है कि ये दोनों फल खुसूसी अहमियत के हामिल है। खजूर का दरख्त बड़ी लंबी उम्र पाता है और हर साल फल देता है। बाज़ ममालिक में ये ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। दरख्त से बर्दाश्त करने के बाद खजूर का फल 3-3 साल तक खराब नहीं होता, बल्कि काबिल इस्तेमाल रहता है। इस फल में शुक्र, शक्कर, हरारत और तवानाई जो है वो बैक वक्त पाए जाते हैं। इसलिए ये फल जो है न सिर्फ तफरी के काम आता है और जिस्मानी नशोनुमा के लिए भी बेहतरीन ग़िज़ा है। दरख्त से बर्दाश्त करने के बाद खजूर का फल जो है 3-3 साल तक खराब नहीं होता, बल्कि काबिल इस्तेमाल रहता है। इसमें शक्कर भी मौजूद होता है, हरारत और तवानाई, बैक वक्त ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। इसी तरह अनार जो है वो भी अजीब व गरीब फल है। अल्लाह ताला ने उसके दानों को मजबूत खोल में बंद करके महफूज बना दिया है। जायके के दीवार से आमतौर पर अनार की 3 किस्में हैं। एक तुर्श अनार होता है और एक शीरीन होता है
اور एक और किस्म होती है उसकी, अनाज से जो है वो चटनी और अचार तैयार किया जाता है। और एक खुश किस्म का अनार होता है जो सफरावी मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद होता है। और मीठा अनार जो है ये तस्वीर के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। उसके इस्तेमाल से जिस्म में सारे खून काफी मिकदार में पैदा होता है, जो कि जिस्मानी साथ में बड़ा मुफीद साबित होता है। इन दोनों फलों की इन खसूसियात के बिना पर खजूर और अनार को उर्फ आम और मुहावरे में फल शुमार नहीं किया जाता। चुनांचे फलों का इतलाक इन दो के अलावा बाकी फलों पर भी होता है। इसी बिना पे इमाम साहब फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कसम उठा ले कि वो फल नहीं खाएगा, फिर खजूर या अनार खा ले, तो वो शख्स हानिस नहीं होगा। की मजीद मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स सिरका खाने की कसम उठाता है, अगर कोई शख्स जो है सर न खाने की कसम उठाता है और फिर वो चिड़िया के सर खा लेता है, तो भी उसकी कसम नहीं टूटेगी, क्योंकि उर्फ आम में सर का इतलाक भेड़ बकरी या गाय भैंस के सर पे होता है, चिड़िया के सर पे इसका इतलाक नहीं होता। इसी तरह अगर कोई आदमी फर्श पे ना सोने की कसम उठाता है और फिर वो जमीन पे सो जाता है, तो भी कसम नहीं टूटेगी, क्योंकि उर्फ आम में फर्श से मुराद बिस्तर होता है, हालांकि अल्लाह ताला ने जमीन को भी फर्श फरमाया है, कहा है। तो बाज मुफस्सिरीन खजूर और अनार के फलों के बतौर खुसूसी तज़किरा के एक और तवजी ये बयान करते हैं और फरमाते हैं कि ये जिक्र तखसीस बाद तामीम है, यानी आम फलों का जिक्र करने के बाद इनकी इन इनको इनकी खास कैफियत और फवाइद की वजह से अलहदा भी जिक्र किया। और इसकी मिसाल जो है तिरमिज़ी शरीफ में भी मिलती है। सहाबा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असला, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलवा और शहद पसंद फरमाते थे। हलवा हर मीठी चीज को कहा जाता है। अरबी जुबान में तमाम मिठाइयाँ हलवा ही कहलाती है। तो शहद भी अगरचे हलवा में दाखिल है, लेकिन तखसीस के लिए उसका अलहदा जिक्र भी कर दिया गया। वजह यही है कि अल्लाह ताला ने शहद में दूसरी मीठी चीज़ों की निस्बत खसूसियत रखी है। जैसे फरमाया फ़ी शिफ़ा लिन्नास, इसमें लोगों के लिए अल्लाह ताला ने शिफा भी रखी है। इसी तरह फलों के जिक्र के साथ खजूर और अनार का जिक्र उसकी खसूसियत की वजह से किया गया है। इन तमाम आदि चीज़ों का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने फिर वही बात दोहराई, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नों और इंसानों, तुम दोनों गुरों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए आखिरत में बागात जैसी बेहतरीन रहाइश और वहाँ पर हासिल होने वाली खुर्द व नविश की बेहतरीन और बाअफराद चीज़ों का जिक्र करने के बाद एक और नेमत का जिक्र फरमाया। इंसान जो है बितवा मदनी है, मिलजुल के रहने को पसंद करता है। इस इज्तिमाइयत की वजह से और इसकी सबसे अहम सूरत जो है मियाँ बीवी का इज्तिमा है। फितरी तौर पे मर्द औरत की और औरत मर्द की ज़रूरत महसूस करती है कि ज़िंदगी में खुशगवारी की ये बेहतरीन सूरत है। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि दुनियावी एतबार से इंसान की सआदत यह है कि उसे अच्छा मकान, अच्छी सवारी और अच्छी बीवी मुयसर आ जाए। इन अशिया की ख्वाहिश इंसान के लिए अगले जहान में भी बदस्तूर कायम रहेगी। इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि खैरातुल हिसान, जिन बागात का जिक्र किया जा रहा है उनमें अच्छी और खूबसूरत औरतें भी होंगी। इस नेमत पर भी अल्लाह ताला ने याद दिलाया, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे। और फिर आगे उन औरतों की तारीफ बयान की है। हुरुम मकसूरातुन फिल खियाम, हुरुम मकसूरातुन फिल खियाम, कि वो ऐसी गोरी चिट्टी खूबसूरत औरतें होंगी जो खेमों में रुकी हुई होंगी। उनकी खूबसूरती के अलावा उनमें ये खसूसियत भी है कि अपने अपने खेमों के अंदर रहाइश पजीर है, न वो बाहर आती है और न किसी गैर मर्द पे उनकी नजर पड़ती है। अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो आगे मजीद वजाहत फरमा दी कि वो ऐसी बाइस्मत और बाहया औरतें हैं, लम यत्मिसहुन्ना इंसन क़ब्लहुम वला जान, इससे पहले उनको किसी इंसान या जिन ने हाथ तक नहीं लगाया। इतनी पाकीज़ा बीवियां अहले जन्नत को मिलेंगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस ए जिन्नों और इंसानों, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत की तकजीब करोगे।
इस्मत और हया ही औरत के हक में कमाल है, और यही चीज़ें मर्द के लिए भी ज़रूरी है। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को हयादारी की तलकीन की, और फरमाया है कि दोनों अपनी निगाहें को नीचे रखें और अपनी इस्मत की हिफाजत करें। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जन्नत में दो किस्म की औरतें होंगी। एक तो ये हूरें होंगी जिनका जिक्र इन आयात में हुआ है, ये निहायत ही पाकीज़ा और बाइस्मत होंगी, और अल्लाह ताला इनको जन्नती मर्दों के लिए जन्नत ही में पैदा फरमाएगा। इनके अलावा दुनिया की अहली ईमान और नेक औरतें भी जन्नत में होंगी, जो हूरों से भी ज़्यादा हसीन और जमील होंगी। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हूर ऐन को ज़ाफ़रान जैसे पाकीज़ा और खुशबूदार मादे से पैदा किया है। मुफस्सिर कुरान ज़ैद बिन असलम ताबिई फरमाते हैं कि खलक़हुन्ना मिन मिस्किन व काफूरिन व ज़ाफ़रानिन, अल्लाह ताला ने जन्नती हूरों को कस्तूरी, काफूर और ज़ाफ़रान के मादे से पैदा किया है। इस रिवायत में कि अल्लाह ताला इन हूरों को जन्नत ही में पैदा करेगा, यानी ये वहीं की मखलूक होगी, नहायत पकी पाकीज़ा, खूबसूरत और अखलाक मखलूक होंगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने जन्नत वालों के आराम और आसाइश का जिक्र फरमाया। मुत्तकीईना अला रफ़रफ़िन खुज़रिन, वो सब्ज़ रंग के मसनदों पे तकिया लगा के बैठने वाले होंगे। रफ़रफ़ का माना फ़र्श भी होता है और तकिया भी। और साथ फरमाया व अबक़रिय्यिन हिसान, निहायत नफ़ीस कालीनों पे। अबकर कमाल दर्जे की चीज को कहते हैं जिसकी मिसाल मौजूद ना हो। ताहम अबकरी का इतलाक खुद इंसान पे भी होता है। अरबी में हर अच्छी और नफीस चीज को अबकर कहा जाता है। कोई खूबसूरत नक्श व नगार वाला कालीन या फर्श हो तो उसको अबकरी ही कहते हैं। दरअसल अरबों में मशहूर था कि अबकर जिन्नात का बनाया हुआ निहायत खूबसूरत शहर है, इसलिए वो हर अच्छी चीज को अबकर कह देते थे। तो बहरहाल फरमाया कि अहले जन्नत निहायत उम्दा किस्म के कालीनों पर तकिए लगा के आराम करेंगे। फिर आगे वही जुमला 31वें मरतबा दोहराया, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये जिन्नों और इंसानों, अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी इतनी बेमिसाल नेमतें अता फरमा दी है, तो बताओ अब तुम उसकी किस किस नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला की नेमतें तो शुमार से बाहिर है, तुम उनमें से किस किस का इनकार करोगे। मतलब ये है कि तुम ख्वाहिश के बावजूद इनकार ही नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मज़कूरा नेमतों में से कुछ तो फिल वाक़ई नेमतें हैं, और बाज़ सज़ा की चीज़ों का ज़िक्र किया गया है, और इन चीज़ों का तज़किरा भी अल्लाह ताला का एहसान है ताकि लोग खुराफात से बच जाए, आखिरत के अज़ाब से खलासी हासिल कर लें। सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने अपनी अज़मत और जलाल का ज़िक्र किया, जिसने इंसानों को इन बेशकीमत नेमतों से नवाजा है। फिर आगे इरशाद होता है, तबारक अस्मु रब्बिक, बड़ा ही बाबरकत है तेरे परवरदिगार का नाम। बात फरमाते हैं कि यहाँ पर इसम से मुराद सिफत है, यानी तेरे रब की सिफात बड़ी बाबरकत है। और बात फरमाते हैं कि यहाँ पर लफ्ज इसम जायद है, और मतलब ये है कि तेरा परवरदिगार बड़ा ही बाबरकत है, जिसने इंसानों के लिए मज़कूरा नेमतें पैदा की है। ताहम इसम भी दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह ताला के बहुत से अस्माए पाक है, और उनमें से जिस इसम के साथ भी उसे याद किया जाए वो राजी होता है। तो बड़ी बरकत वाला है तेरे रब का नाम, दिल जलाल वल इकराम, जो बड़ी बुजुर्गी और आजमत वाला है। ये अल्लाह ताला की खुशनुदी के अल्फाज है, लिहाजा उसको इन अल्फाज के साथ याद करना चाहिए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद ये दुआ पढ़ने की तरगीब दिलाई, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, तू सलामती वाला है, यानी तेरा इसम पाक है, तेरी सिफत सलाम है, तुझ ही से सलामती है, तू बड़ी बरकत वाला है, ए बुजुर्गी और अजमत वाले परवरदिगार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर कायदे की हालत में बैठे बैठे ये दुआ पढ़ा करते थे, और उसके अलावा अल्लाहु अकबर और 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह भी कहते थे। और फिर बाकी दुआएं जो है वो रुख फेर के पढ़ते थे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हमारी सूरत रहमान जो है ये भी मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह ताला इसको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हम सब के लिए सदका जारिया बना दे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का हिदायत का जरिया बना दे।